औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी आयानु बखैर आगले निहाओ चुनशुम्मे वशमले Ohio Gonzalez, Guten Morgen, Hola, Boyo, Privet, Kaifahal, Hale Shumachatore, Ahlan Wasal, Marhaba, Buna, Mucho, Gracias, Swabi, Bali Kriya, Hosh Galden, and Ayo Sayo, Huyamora, Chivato, Chihal, Jod, Kalimera, Khairutan, and a very warm welcome to everybody who's tuned into PTV Sports and are watching the pre-match analysis on Game On. Khawateen Azad, मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे. As we enter the knockout stage, it's going to be a big game for the big boys. But before I speak any further, ladies and gentlemen, it is of utmost obligation for me that I introduce my worthy co-host, who happens to be Miss Roha Nadeem. Hello, Roha. Assalamu alaikum. How are you feeling today? Walaikum assalam. Good morning, Shahzad. Good morning to everybody who has joined us today for the pre-match show on Game On है. First semi-final, we are finally here. शहजाद, ऐसा लग नहीं रहा कि पूरा टूर्नामेंट गुजर गया है. लास्ट लेग जो है वो अब स्टार्ट हो गया, the knockouts. और we are just a few days away from seeing the new world champions being crowned in India. तो a lot of excitement leading up to that, of course. लेकिन अगर हम फोकस सिर्फ आज के मैच पे करें, it is going to be a cracker of a knockout, क्योंकि ये दो टीम्स जितनी दफ़ा भी आमने सामने आई हैं वनडे क्रिकेट में, वर्ल्ड कप्स के अंदर, they have been at their very best against each other, क्योंकि ये दो टीम्स है, कभी भी बहुत ज़्यादा देर के लिए इनके ऊपर वो पीरियड नहीं आता in a game where they're out of it, where you can ride them out. Exactly. So I think ये दोनों टीम्स आज अपना 100% देंगी and it will be a proper exciting knockout game. Let's take a look at the match card and see who, of course, everybody knows who's playing today, but there's a refresher. It is the Kiwis, New Zealand, the runners-ups of the last World Cup, taking on India in India. So this is going to be an exciting one. Wankhede Stadium, Mumbai में खेला जाएगा आज का पहला semi-final. एंड ये दोनों टीम्स जो हैं इनके और ट्रॉफी के बीच में जो है सिर्फ अब 2 कदम का फासला रह गया है. Exactly. क्या ये 2 कदम का फासला तय कर सकेंगे या नहीं? I think that's something which is very important as well. So number 1 coming against number 4, that's the deal, ladies and gentlemen, for today. जैसा कि ये मेंशन कर चुकी है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई. अब जरा इसके हवाले से जरा अनपैक करने की कोशिश करेंगे कि हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि दोनों टीम्स, क्योंकि अगर हम न्यूजीलैंड के ऊपर नजर डालते हैं तो 4 मैचेस ऑन द ट्रॉट लूज करने के बाद 1 मैच जीते और फिर उसके बाद आगे चले गए. अफगानिस्तान पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, दूसरी जानिब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया बगैर किसी मैच को हारे इस सेमीफाइनल तक पहुंचा है. क्या समझते हैं हमारे एक्सपर्ट्स कि आज कौन सी टीम हैवी होगी, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस, क्या अपॉर्चुनिटी और क्या थ्रेट? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, विदाउट एनी फर्दर अडू, just before the first semi-final of the ICC Men's World Cup, we are going to introduce our worthy guests over here. सबसे पहले ख़वातीन आज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं. एक ऐसी शख्सियत जब भी इनकी बात की जाती है, 151 फर्स्ट क्लास मैचेस इन्होंने खेले, 7,647 रन इन्होंने बनाए, हाई स्कोर 300, not out with an average of 36.4. Former Test cricketer himself, he is Mr. Bazid Khan. Assalamu alaikum, Bazid bhai, how are you? वालेकुम सलाम. आज को बहुत कुछ नया लिया है सर. देखिए नॉकआउट स्टेज है ना, हम भी जरा नॉकआउट वाले मोड में हैं. ख़वातीन और हज़रात, 2 दिन की छुट्टी मिली है तो हम तो लगा था कि वर्ल्ड कप खत्म हो गया. नहीं, अभी वर्ल्ड कप अब वापस आपको जोन में ले आए इसी इंट्रोडक्शन के साथ. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. Alongside him, ladies and gentlemen, we're very lucky that we've actually been joined by the left arm quick of Pakistan. 91 ODIs में इन्होंने फीचर किया, 120 विकेट्स हासिल की, बेस्ट फिगर्स है 5 for 46 और एवरेज है 34.3 की और इकोनॉमी 5.70. ख़वातीन और हज़रात, ये है मिस्टर वहाब रियाज. अस्सलाम वालेकुम वहाब भाई. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप कैसे हैं? आप बिल्कुल ठीक ठाक. ठीक है. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. उनके साथ ही ख़वातीन और हज़रात एक टावरिंग शख्सियत क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, 218 वनडे इंटरनेशनल्स में फीचर किया, 6,614 रन बनाए, 140 नॉट आउट, हाई स्कोर रहा, एवरेज रही 32.90 की, स्ट्राइक रेट 76.61 का, 11 सेंचुरियां और 38 हाफ सेंचुरियां बनाई इन्होंने. और अगर बॉलिंग की बात करते हैं, 139 विकेट्स, 4 of 41 बेस्ट फिगर्स. Ladies and gentlemen, he is Mr. मोहम्मद हफीज. अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. एंड फॉर्मर स्कीपर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम. आज बहुत एनर्जी है. थैंक यू सो मच सर. आज सेमीफाइनल में एनर्जी बनती है. परफेक्शनिस्ट वो परफेक्शन चंदा प्रोफेसर तो सब फिगर्स में बता दिया ना, फिगर्स में बता दिया. आपकी मर्जी है, एस्टैब्लिशमेंट जो मर्जी चाहे वो इंट्रोडक्शन करवाए. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ख़वातीन और हज़रात, 166 वनडे इंटरनेशनल्स खेले इन्होंने, 1709 रन बनाए, हाई स्कोर 79 का रहा.
इन्होंने 3 निफ सेंचुरियां बनाई और उसके बाद 125 चौके लगाए, और अगर कैचेस की बात करते हैं बिहाइंड द स्टंप्स 182 वनडे इंटरनेशनल कैचेस पकड़े। फॉर्मर स्किपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैटर, ये है मिस्टर राशिद लतीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप कैसे सर? स्टंप नहीं दिए हुए इसमें? नहीं सर, वो कैचेस अरे मैंने कहा यार। कैचेस जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रिविलेज रहेंगे। नहीं, आखिरी में तुम झटका दे दिया सबको। लेकिन थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। आपसे आगाज करते हैं सर, योर टेक ऑन टुडेज फर्स्ट सेमीफाइनल। यार अगर सब इजाजत है पिच के ऊपर थोड़ी बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, खबर भी आई है। खबर आई और बहुत ऑथेंटिक खबर है, जाहिर सी बात है। लॉरेंस बूटे शाह वो गलत खबर नहीं होती कि ओरिजिनल जो पिच थी, जो फ्रेश पिच थी, उससे हट के डिफरेंट पिच पे खेल रहे हैं जो कि यूज पिच है जी, 2 मैच। और जाहिर सी बात है आईसीसी ने परमिट नहीं करता ऐसे मौक़ों पे, लेकिन क्या वजूहत हैं हमें अभी इल्म नहीं है, लेकिन ये गलत हुआ जो भी हुआ, चाहे बीसीसीआई की इंटरफेरेंस हो या आईसीसी नहीं कर रहा है इसके ऊपर, ये क्रिकेट के लिए गलत होता है कि कोई क्रिकेट अथॉरिटी आके चेंज कर दे पिच, वो डिफरेंट होता है। न्यूजीलैंड ऐसी टीम है जो कि थ्रेट कर रही है थ्रू आउट, इनको करती रही है, लास्ट 19 के वर्ल्ड कप में भी इन्होंने किया था। तो जो कुछ हुआ, जो खबरें हमने पढ़ी हैं, शायद उसके लिहाज से क्रिकेट के लिए गलत हुआ, उस वर्ल्ड कप के लिए भी गलत हुआ। बिल्कुल, यहाँ पे न्यूजीलैंड एंड इंडिया ऑफ कोर्स कमिंग अगेंस्ट ईच अदर। बीके, कमिंग टुवर्ड्स यू, ये एक ऐसा मैच है ऑफ कोर्स, अगर हम प्रेशर की बात करें तो इट वुड बी स्टेटिंग द ऑब्वियस, लेकिन जब प्रेशर ज़्यादा जिस टीम पे होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया टुडे विल बी मूविंग अहेड विद द मोस्ट प्रेशर, क्योंकि ऑफ कोर्स वानखेड़े स्टेडियम आइकॉनिक ग्राउंड है, इट विल बी पैक्ड। न्यूजीलैंड ऑन द अदर हैंड विल आल्सो बी फीलिंग दैट प्रेशर, लेकिन इंडिया को शायद थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा। डू यू थिंक दैट विल बी अ फैक्टर टुडे, या इंडिया चैंपियंस ही हैं उस प्रेशर के साथ अपना बेस्ट परफॉर्म करने में, खास तौर पे उनके जो स्टार प्लेयर्स हैं? देखिए बिल्कुल, मैच से पहले या चंद घंटे पहले अगर कोई इस तरह की खबर ब्रेक हो और आप फॉर इंस्टेंस अगर हम शो पे आएँ और मतलब 5 मिनट पहले हमें बताया जाए कि ऐसे नहीं आज अपने अटायर गलत पहना है, तो दिमाग थोड़ा सा हिलता ज़रूर है। तो ये जो रिपोर्ट आ रही है, इसका ये मतलब है कि इंडिया पे ज़्यादा प्रेशर है। पिच चेंज होना कोई मामूली बात नहीं है। जो उनका आईसीसी का ग्राउंडमैन है और क्यूरेटर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है आईसीसी को, और जो हेड है उसकी अगर स्टेटमेंट आ रही है कि ही वाज अनअवेयर, और मतलब वो थोड़ा उसने नाराज़गी का इजहार किया है कि हमने जो प्लान बनाया हुआ था उसके मुताबिक चल रहा था, आज क्यों पिच चेंज की, तो प्रेशर इंडिया पे ज़रूर है। न्यूजीलैंड के लिए शायद ये अच्छी बात हो, अगर स्पिन फ्रेंडली पिच है तो उनका जो 5वां बॉलर है वो निकल जाएगा, मतलब ग्लेन फिलिप्स जो ओवर जो शायद लग रहा था वीक लिंक है वो निकल जाएगा। तो प्रेशर की आपने बात की, तो इंडिया ने एक तो उन पे तो प्रेशर रहेगा ही क्योंकि होम टीम है और एक्सपेक्टेड टू विन, लेकिन एक टीम ऐसी जो एडिड अपने आप पे प्रेशर उन्होंने डाल लिया है कि अब ये सरफेस हुए न्यूज़ बिल्कुल मैच से थोड़ी देर पहले। आईसीसी ये कह रहा है कि कोई स्टिपुलेशन नहीं है कि जो नॉकआउट गेम्स होती हैं वो फ्रेश पिच पे खेली जाए। अगर आपको याद हो तो जो पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता था इंग्लैंड में, उस मैच के बाद मॉर्गन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंप्लेन किया था कि हमें यूज पिच पे खिलाया नॉकआउट गेम। उसे स्पेसिफाई किया कि नॉकआउट गेम क्यों हमें यूज पिच पे खिलाया, हालांकि वो होस्ट इंग्लैंड था, पिचेस आईसीसी ने बनानी थी और इंग्लैंड के कप्तान ने कंप्लेन किया। आज को मामला दूसरा है, आईसीसी कंप्लेन कर रही है, होस्ट इंडिया। डू यू थिंक केन विलियमसन विल आल्सो कम फॉरवर्ड विद समथिंग, अ स्टेटमेंट? अभी तो मैच शुरू, मैच से पहले तो अभी तो खबर आई है, तो मैच से पहले अगर उन्होंने कोई बात नहीं की तो अभी तो नहीं करेंगे। अगर फॉर इंस्टेंस, वैसे न्यूजीलैंड से हम ये तवक्को नहीं करते, वो बहुत ही कम ऐसी स्टेटमेंट, लेकिन जब मैच खत्म हो जाएगा, जब बाद में डिटेल में बात हो तो शायद स्टेटमेंट आए। एग्जैक्टली, बट नॉट ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट एज वेल। और जहाँ प्रेशर की बात की, मेरा ख्याल है जिस पिच के हवाले से बात की जा रही है वहाँ पे उनको लगता है कि शायद वो स्पिन फ्रेंडली होगी, जिसकी वजह से शायद इंडिया हैज मेड सच अ डिसीजन। मैं आपकी जाने बढ़ता हूँ, वहाँ पे केन विलियमसन की भी एक स्टेटमेंट आई है, वो ये कहते हैं कि 2019 का भी वर्ल्ड कप जब हम खेलने गए थे, जब हमारे मैचेस हुए तो वहाँ पे इंडियन फैंस की एक भरमार थी, बहुत सारी तादाद थी, तो ऐसा कोई हम खास आज प्रेशर नहीं फील करेंगे। हैविंग सेड सो, प्रेशर होगा तो ज़रूर सेमीफाइनल का प्रेशर होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि क्राउड का ज़्यादा प्रेशर लेगी न्यूजीलैंड की टीम। देखिए उनके जो कैप्टन है ना, उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी टीम का कि वो बड़े काम हैं, कंपोज्ड हैं, अपना होमवर्क करके आते हैं, और उनका बस एक ही तरीका है कि जी हमें मैच किसी तरीके से जीतना है। केन विलियमसन की कल भी एक स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कभी ये 2 स्टेटमेंट नहीं देता कि आई वांट टू विन द वर्ल्ड कप एंड वी विल क्या कहते हैं विन दिस वर्ल्ड कप फॉर दिस एंड दैट।
तो बड़े डिसिप्लिन टीम है ये और विद इन दमसेल्व्स रहने वाली टीम है। किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते, फ्रेंडली माहौल में रहते हैं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म एट इट्स पीक और प्रॉपर खेलते हैं। और इस पूरे टूर्नामेंट में मैंने पहले भी कहा था कि ये वाहिद एक ऐसी टीम है जो इंडिया को थ्रेट कर सकती है, क्योंकि इनके जो बैट्समैन हैं वो स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेलते हैं एज़ कम्पेयर अगर टर्न ओवर और दूसरे हमारे हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया मिजरेबली फेल्ड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, दे ऑल मिजरेबली फेल्ड। लेकिन ये एक ऐसी टीम है जो कि अपना पूरा जो है वो मुकाबला करेगी और इनके पास ऐसे बैट्समैन हैं जो अटैक करेंगे। और दैट कुड ऑल्सो बी द रीज़न वाई इंडिया इज़ ऑल्सो अंडर प्रेशर, बिकॉज दे नो कि यार ये इन लोगों को हराना जो है ना वो, क्योंकि एक होता है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेस्ड पे, ये टीम परफॉर्मेंस बेस्ड पे ज़्यादा यकीन करते हैं और बड़ा तौर तरीके से चलते हैं। मतलब जो इनके कप्तान थे लेथम, वो 6वें नंबर पे आ रहे हैं, तो ही इज़ यूजली नॉट हु यूज्ड टू प्ले एट नंबर 6, लेकिन फॉर द टीम ही हैज़ टू प्ले। और एक दफ़ा उनका जो है वो बयान नहीं आया कि मैं 6वें नंबर पे क्यों खेल रहा हूँ, हालांकि मैं तो चौथे 5वें पे खेलता था या तीसरे पे खेलता था। तो दिस शोज़ द यूनिटी दे हैव कि जिसको जो रोल दिया दे जस्ट ट्राई टू डू दैट। और अगर आज भी उन्होंने वो अपने रोल्स पूरे किए तो मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड विल बी अ सक्सेसफुल टीम। राइट, अभी प्रेशर की तो बात हो गई है। हफीज, मूविंग टुवर्ड्स यू, न्यूजीलैंड और इंडिया जो है इस जो मौके तक पहुंचे हैं वर्ल्ड कप में नॉकआउट तक, वो डिफरेंट जर्नीज रही हैं दोनों टीम्स की। इंडिया की जर्नी ऑफ कोर्स अनबीटन रहे हैं अभी तक, अपने 9 के 9 मैचेस जीत के वो कन्विंसिंगली पहुंचे हैं सेमीफाइनल में। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड हैव लॉस्ट बैक टू बैक गेम्स और वो बारिश भी हो गई थी उस गेम के अंदर। फिर एक उनका जो लास्ट बिफोर कमिंग इनटू दिस मैच जो एक लास्ट विक्ट्री थी उसकी होप्स के ऊपर वो करें। लेकिन केन विलियमसन का ये कहना है कि जब भी नॉकआउट गेम आप खेलते हैं, नो मैटर व्हाट योर जर्नी हैज़ बीन, आप फ्रेश स्टार्ट करते हैं, आपकी क्लॉक दोबारा से सेट होती है। ये कितना ज़रूरी है आज दोनों कैप्टन्स के लिए, बट ख़ास तौर पे न्यूजीलैंड के लिए, कि रीसेट होके वापस आएँ और इस गेम को एक न्यू चैलेंज के तौर पर लें। First of all, would like to congratulate all the 4 teams to qualify to the knockout stage. They played fantastically well in this tournament. आज के मैच को लेके 2-3 चीज़ें बात करूंगा। एक तो कोई शक नहीं कि इंडिया फॉर्मिडेबल फोर्स लग रही है, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, वो सारे बॉक्सेस हिट कर रही है जो किसी भी चैम्पियन टीम के लिए ज़रूरी है। वो तमाम चीज़ें उनके बॉलर जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ी उसने परफॉर्म किया। बैट्समैन, सारे बैट्समैनों को अगर आप देखें तो उन्होंने मौके के ऊपर बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी। तो बहुत सी एक राइट पॉजिटिव वाइब है जिसको लेके वो चल रहे हैं। लेकिन जो न्यूजीलैंड है, मेरा ख्याल है कि उनका वो जो इनका हिकअप आया, वो जो उनकी एक मुश्किल आई, जहाँ पे उनकी इंजरीज़ आई, इंजरीज़ के बाद दोबारा से रीगैदर हुए और होके वो जो स्पेशल गेम उन्होंने खेला, जिस मैच में उन्होंने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को बाय नेट रन रेट इतना पीछे कर दिया, ये उनके टीम वर्क होने को शो करता है कि अंडर प्रेशर भी उनकी विक्ट्री तो जहन में थी, लेकिन उस विक्ट्री को मार्जिन लेने की प्लानिंग इतनी शानदार थी कि उन्होंने बाकी 2 टीमों को बिल्कुल साइड पे कर दिया और अपने आप को उस जगह पे रखा कि अगर वो 2 टीमें मैच जीत भी जाएं तो हमें मुश्किल से वो बीट कर सकें। तो दे ऑल्सो डिज़र्व टू बी देयर एज ए टीम। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड और इंडिया के आज के मैच को लेके जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जो कंट्रोवर्सी अभी क्रिएट की गई है, जो आ रही है, और इसको 2 दिन पहले पिक्चर्स के अंदर देखा गया कि राहुल द्रविड़, विक्रम राठौर, जो उनके विक थिंक टैंक है, वो सारे पिच के ऊपर जो है वो वॉक कर रहे हैं। और अभी आईसीसी के जो क्यूरेटर हैं, जो टीम बनाते हैं, उन्होंने टीम हैंड ओवर नहीं की कि आप आके ये देख लें, यानी वो उसकी प्रिपरेशन के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि गलत हुआ। और अगर ऐसा था भी, और जो ये बात कर रहे हैं कि पिच चेंज हो रही है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ पे मैच हो रहा है, अगर सेम वेन्यू है, सेम उसके करेक्टरिस्टिक्स जो है वो सामने आते हैं। क्योंकि बॉम्बे के अंदर अब तक के जितने मैच हुए हैं वहाँ पे अच्छा बाउंस मिला है। अगर वो बाउंस नल किया जाता है, अगर उस बाउंस को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम को बाउंस चाहिए, न्यूजीलैंड की टीम को पेस चाहिए, और अगर बॉम्बे के अंदर आज न्यूजीलैंड को वो नहीं मिलता या उसकी पिच चेंज की गई है, यूज पिच दी जा रही है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये पहली मरतबा नहीं हुआ। आई विल रिवाइंड यू सम लाइक स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, हम अगर वहाँ पे रिफ्रेश करें अपने आप को थोड़ा सा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो इंडिया का मैच था, वहाँ पे पिच जो मिली वो इंडिया को फेवर कर रही थी। इंग्लैंड के साथ जो मैच था, वहाँ पे जो पिच मिली इंडिया को, वहाँ पे वो पिच फेवर कर रही थी, फास्ट बॉलिंग को नल किया गया। तीसरा मैच साउथ अफ्रीका का था, वहाँ पे जो पिच मिली उसमें भी जो ट्रैक था वहाँ पे बाउंस कम था, वहाँ पे टर्न ज़्यादा था। यानी तीनों मैचों में नहीं हो सकता ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये प्लानिंग हो सकती है। इत्तेफाक नहीं हो सकता, प्लानिंग हो सकती है कि इन टीमों के पास क्योंकि स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलिंग की और हमारे पास स्ट्रेंथ है
स्पिन बॉलिंग की, तो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेला गया, जो कि होम टीम को एडवांटेज मिलते हैं, लेकिन वो एडवांटेज ग्राउंड की जो फेमिलियरिटी होती है, सिमिलैरिटी है उसके साथ होता है, क्राउड की सपोर्ट होती है, लेकिन जो पिच होती है वो आईसीसी के थ्रू चलती है। पिच का तमाम डिसीजन आईसीसी लेता है, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा जो है वो प्लानिंग के साथ चीज़ें की जा रही हैं तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है अथॉरिटीज़ के ऊपर। लेकिन अगर ऐसा किया भी जा रहा है, देखिए टीम ने ग्राउंड के अंदर जीत के दिखाना है, लेकिन अगर आज की पिच को लेके अगर वो बाउंस नहीं मिलता तो ज़रूर एक क्वेश्चन मार्क उठेगा कि आईसीसी की अथॉरिटीज़ कहाँ पे हैं। लेकिन न्यूजीलैंड ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है कि एक ऐसी टीम है बिल्कुल जो हमेशा किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में वो इंडिया को चैलेंज कर सकती है। तो आज का मैच अपार्ट फ्रॉम दैट पिच कंडीशन जो भी प्रोवाइड होगी, दोनों टीमों की जो नॉकआउट स्टेज की स्टार्टअप करने वाला जो जोन है वो आएगा, और इंडिया के ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इंडिया अभी तक यहाँ तक तो पिछले 10-12 साल की जो जर्नी उनकी रही वो नॉकआउट स्टेज पे पहुंचता रहा, लेकिन 2011 और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जब वो नॉकआउट स्टेज पे गया वो हारा बाहर हुए है। हैं, तो आज बिल्कुल। बहुत अंडर प्रेशर होगा इंडिया कि उन्होंने ये वाला जो बॉक्स है वो टिक करना, और ये हम सबको पता है कि जब ये स्टेज आती है तो आपकी जितनी भी जर्नी रहती है वो एक स्पेशल वे में स्टार्ट होती है, और आज के दिन का प्रेशर हैंडल करना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। बिल्कुल, इट विल बी अ मैच अप ऑफ द नर्व्स। दोनों टीम्स के कैप्टन जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स प्रेशर को भी देख रहे होंगे, बट विल बी ट्राइंग देयर बेस्ट ऑफ कोर्स to outplay all of that and bring their best onto the field. And speaking of their contest, एक दफ़ा head to head पे नज़र डालते हैं। इंडिया एंड न्यूजीलैंड head to head इन वर्ल्ड कप मैचेस अगर हम देखें जी, 9 मैचेस हुए हैं बिटवीन दीज टीम्स, 5 टाइम्स न्यूजीलैंड हैव वन, 5 गेम्स न्यूजीलैंड, 4 गेम्स इंडिया। तो ये वर्ल्ड कप्स का हेड टू हेड है। राशिद सर, कितना इसका कोई होगा इम्पैक्ट, क्योंकि इंडिया ज़रूर भी चाहेगा कि आज इसको बराबर किया जाए। नहीं, न्यूजीलैंड ने हमेशा टफ टाइम दिया इंडिया को, स्पेशली जो रिसेंट हुआ है 19 का सेमीफाइनल, वो फेमस था बहुत, क्योंकि वो तवक्को नहीं थी किसी को भी कि न्यूजीलैंड ऐसा कर जाएगा। मैट हेनरी ने स्पेल किया और पूरी टीम 1 घंटे में वो 3-4 उसने आउट किए और गेम ख़त्म हो गया, और सारे अच्छे बैट्समैन थे। इन दोनों का मवाजना इस वर्ल्ड कप में किया जाए तो दोनों का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। हम बैटिंग की अगर बात करते हैं, पावर प्ले में दोनों इक्वल हैं, 6.5 पे गए हैं दोनों की टीम। पावर प्ले के बाद हम मिडिल ओवर्स में आते हैं, दोनों ने अच्छा किया हुआ है। लास्ट ओवर में थोड़ा सा एडवांटेज इंडिया को है यहाँ पे। बॉलिंग स्पिन अटैक में आते हैं तो इंडिया बहुत आगे है जी, क्योंकि कुलदीप ने बॉल की हुई है और साथ में जडेजा ने और अश्विन ने एक मैच खेला है, उसमें इकॉनमी रेट इनका कोई मैच कर ही नहीं सकता। लेकिन सेटनर को देखते हैं, वो विकेट टेकिंग बॉलर है, नॉकआउट में डैमेज कर सकता है इनको। बुमराह की बात करते हैं, पावर प्ले में अगर हम बात करते हैं तो उसका भी मैच नहीं है। उसने 400 अगर बॉल किए हैं उसने तो 200 उसकी डॉट बॉल है, उसका रेशियो, उसका इकॉनमी रेट 3 पॉइंट कुछ है। जी, तो ऊपर से रोहित शर्मा को लेते हैं और बैटिंग में बॉलिंग में लेते हैं जसप्रीत बुमराह, दोनों टीमों का मवाजना करते हैं सिंगल, तो दोनों बेस अच्छी रखते हैं बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। Exactly. मवादा हम इस तरफ आ जाते हैं, न्यूजीलैंड के पास तो रचिन है और कॉनवे हैं, दोनों ही इस्टेब्लिश प्लेयर है, इस वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। डिसएडवांटेज दोनों का, दोनों लेफ्ट हैंडर हैं और दोनों न्यू बॉलर हैं। वो लेफ्ट हैंडर को बहुत ही उम्दा लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, ये वो आप बता सकते हैं सही, क्योंकि दोनों की बाहर निकलती है अच्छी लेंथ से, मिडिल स्टम्प और लेग स्टम्प से बाहर निकलती है, प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सकते हैं। मिडिल में भी इनके पास अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं, और बॉलिंग में अगर देखते हैं जेमिसन के शायद आना आज ज़रूरी होगा, मुंबई के पीछे थोड़ा बाउंस होता है। सऊदी अगर खेलते हैं तो शायद उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, क्योंकि उनकी पेस इतनी नहीं रही। जिमी निशम में बीच में मैच नहीं खेले हुए, लेकिन वो इफेक्टिव हो सकते हैं। एग्जैक्टली वो इफेक्टिव हो सकते हैं, और जहाँ पे न्यूजीलैंड को बिठाने की जरूरत थी उन्होंने विलियम को वहाँ बिठाया भी। मैं इसके साथ, चूंकि आपने पावर प्ले का तस्करा किया, जरा वहाब भाई की जाने बढ़ता हूँ। वहाब भाई, अगर स्पेसिफिकली हम वानखेड़े मुंबई की बात करें तो जो सेकंड इनिंग्स का पावर प्ले है उसके अंदर ही सिर्फ 17 विकेट्स मिली हैं, तो आज मुझे लगता है टॉस जो है वो एक काफ़ी कलीदी किरदार अदा करेगा दोनों टीम्स के लिए सेमीफाइनल। मुंबई में देखते हैं फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट्स हैं पावर प्ले के अंदर, और अगर हम सेकंड इनिंग्स की जाने बढ़ते हैं तो 17 और स्ट्राइक रेट 14.12 का है। अब जो राशिद भाई ने बात की टुवर्ड्स लेफ्ट हैंडर्स के हवाले से कि बॉल अंदर लेकर आते हैं, तो आपको लगता है कि आज शायद जो है टॉस वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा फॉर बोथ द टीम। हालांकि इंडिया की जो स्ट्रेंथ रही है वो चेजिंग में ज़रूर रही है, अगर हम देखते हैं वो शायद अपने आउट ऑफ द कंफर्ट जोन होते हैं अगर वो पहले बैट फर्स्ट करें।
देखिए स्टैट्स आपने दिखाए हैं और ये देखना ज़रूरी होगा कि किन टीमों के यहाँ पे मैचेस हुए हैं, जिसमें मुंबई में जो है उन्होंने बाद में 17 आउट हुए हैं। सो बेसिकली देखें, जब बड़ा मैच होता है, कोई भी स्टेज का बड़ा मैच होता है, तो कोशिश यही होती है टीम्स की कि वो टॉस जीतें और पहले बैटिंग करें, क्योंकि रन्स ऑन द बोर्ड लगाएं। जी। और इस पूरे टूर्नामेंट में हमने ऐसा देखा है कि अंडर लाइट तो बॉल स्विंग हो रहा है और वो हर टीम को एडवांटेज हुआ है, और जिसने उस एडवांटेज को लिया है और कैप्चर किया है वो सक्सेसफुल रहे हैं। अदर देन दैट जो नहीं ले सके, इफ़ दैट टाइम पीरियड गोज़ ऑन, तो शाम में ड्यू भी पड़ती है और बॉल भी उस तरीके से स्पिन या टर्न नहीं लेता ज़्यादा। सो ये एक फैक्टर ऐसा है। अब देखना यह है कि क्योंकि मुंबई की विकेट वैसे तो मोस्टली एक बैटिंग ट्रैक होता है, कि जिसको आप बैटिंग ट्रैक कहते हैं, और कहा था कि जी इसमें एग्जैक्टली जो है वो 6 मीटर पे बॉल होगा तो बचत होगी, अदरवाइज जो है वो नहीं होगी, और बाउंस है तो शॉट्स अच्छे लगते हैं सारे। विकेट का बदल जाना ये अब देखेंगे कि सेकंड इनिंग्स में अगर वो क्या करते हैं। चले फर्स्ट इनिंग्स में तो हमें पता है कि दिन का मैच है, थोड़ा सा हो सकता है कि विकेट जो है वो ट्राई हो तो वो करे, लेकिन अगर सेकंड टाइम मैच अगर विकेट जो है वो थोड़ा सा बॉल गीला हो जाता तो क्या फिर स्पिनर्स को वो हेल्प मिलती है या नहीं मिलती? क्या इंडिया जो है वो सेकंड टाइम में बॉलिंग करके आउट करता है या नहीं? क्योंकि देखें, एक चीज़ तो जो अच्छी थी वो ये थी कि न्यूजीलैंड जो नीदरलैंड है, जब उन्होंने इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप, जिसको हम फास्ट बॉलिंग लाइनअप को बात कर रहे हैं, तो दे डिडंट लूज एनी विकेट, दे लॉस्ट जस्ट 1 विकेट इन द पावर प्ले। और उन्होंने शामी को भी उस मैच में, वाहिद मैच है जिसमें शामी को रन्स हुए हैं, क्योंकि शामी जो है वो कहीं ना कहीं राइट हैंडर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल ज़रूर करते हैं। हाँ, लेफ्ट हैंडर्स को उनका एंगल ज़रूर बनता है। सो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी डिसीजन है कि वेदर जो भी टीम जीतती है दे आर गोइंग टू पुट रन्स ऑन द बोर्ड, क्योंकि रन्स का प्रेशर तो रहेगा। बिल्कुल। और अगर इंडिया चेस करता है, रन चेस करता है, और कई विराट कोहली जल्दी आउट हो जाते हैं रन चेस में, तो मैं आपको ये ज़रूर गारंटी कर सकता हूँ कि ये मैच इंडिया के लिए मुश्किल होने वाला है। एग्जैक्टली, ये इंडिया के लिए मुश्किल हो सकता है। और जितनी बातें कर रहे हैं हम आगे अपने पूरे प्रोग्राम का जो सिलसिला, जो कारवां चल रहा है, इसके अंदर ये सबको डिस्कस करेंगे। और न्यूजीलैंड की एक बात याद रखनी है, आई गेस इट वाज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका दैट दे वर एट 383 व्हाइल चेजिंग एज वेल। सो ये कोई ना समझे कि न्यूजीलैंड चेज नहीं कर सकता। गेम ऑन, आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Right, welcome back to Game On है। फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 आज खेला जाएगा मुंबई में बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स, हमें याद है लास्ट टाइम जब ये टीम्स आमने सामने थी एक नॉकआउट मैच में वर्ल्ड कप में, तो कितना एक्साइटिंग वो कॉन्टेस्ट था। ऑफ कोर्स इंडिया को बाहर किया था न्यूजीलैंड ने, और आज जो है एक बार फिर ये टीम्स नॉकआउट में एक दूसरे को फेस करेंगी। उस सब के ऊपर हम बिल्डअप कर रहे हैं विद आर वंडरफुल एक्सपर्ट पैनल। बट थोड़ा और इन डेप्थ जाते हैं, क्योंकि हमने बात की अभी पिचेस के बारे में और ऑफ कोर्स इंडिया के स्ट्रेंथ के बारे में। सो लेट्स टॉक अ बिट मोर ऑन दैट। स्पिनर्स का आज क्या रोल होगा, बिकॉज राशिद सर यूज्ड पिच पे आज का मैच खेला जाएगा, जिस तरह हमने अभी बात भी की थी, तो स्पिनर्स को काफ़ी एडवांटेज आज होगा, खास तौर पे जो इंडिया के टॉप गन्स हैं, कुलदीप यादव हैं उसमें से, और फिर जडेजा है। एक दफ़ा स्टैट्स पे नज़र डालते हैं, कुछ हमने आपके लिए इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज निकाली हैं यहाँ पे। इफ़ यू लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ स्पिनर्स, हम सबको पता था कि इस वर्ल्ड कप में स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, लेकिन जो टीम्स अपने रेगुलर स्पिनर्स पे भी रिलाई कर रही हैं, उसके अलावा जो अपने जो पार्ट टाइमर्स ऑलराउंडर्स हैं, इवन दे हैव बीन डूइंग सो वेल इन दिस टूर्नामेंट। इफ़ यू लुक एट द टॉप 2 स्पेशली जडेजा एंड यादव सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल सर ये रहे हैं, और फिर केशव महाराज भी ज़बरदस्त। इसमें देखिएगा, जैम्पा को देखते हैं, इनका स्लाइटली से इकोनॉमी रेट हायर साइड पे, लेकिन स्ट्राइक रेट देखें बहुत अमेजिंग 21.5 है। ये विकेट टेकिंग बॉलर हैं, मोस्ट विकेट्स इनके हैं स्पिनर्स पे। जो टीम, ये वो स्टैट्स लग रहे हैं जो टीम सेमीफाइनल्स में पहुंची हैं। रविंद्रा को देखते हैं इसमें, जैम्पा को देखते हैं, मैक्सवेल जो कि ऑस्ट्रेलिया के 2 स्पिनर, सेंटनर को देखते हैं, महाराज साउथ अफ्रीका से, यादव एंड जडेजा, तो बहुत ज़बरदस्त इनका स्टैट लग रहे हैं। हमने परसों लास्ट मैच में यही बात की थी कि हमें अगर 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर मिल जाते, यही बैटर्स, यही बॉलर्स हमें जितवा सकते थे। कितना भारी इम्पैक्ट पड़ा है स्पिनर से, जो कि इनके पार्ट टाइमर में उनका भी बड़ा अच्छा है। अगर मैक्सवेल का देखते हैं या रविंद्रा का देखते हैं, इनका बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया अपने स्पिनर को। तो जहाँ बैटर्स की बात करते हैं या पेसर्स की बात करते हैं, लेकिन
बहुत अहम रोल जो रहा मिडिल ओवर्स में वो स्पिनर्स का रहा। आज हम बात करते हैं सेंटनर की बात करते हैं, जडेजा, दो आमने सामने होंगे। जी इधर से सेंटनर और रविंद्रा, मैक्सवेल सॉरी ग्लेन फिलिप जो हैं वो कुछ नॉन रेगुलर बॉलिंग करते हैं, समटाइम अच्छा भी, उन्होंने बहुत शानदार स्पेल्स भी किए हैं जी लेकिन इन जो रिलाई करेगा लाइक जो अगर पिच चेंज हुआ है तो वो इंडिया को इसलिए सूट करता है कि वहाँ अगर जो सुनने में अभी हमने देखा नहीं है, सो वी कैन नॉट गो दैट फार कमेंटिंग अपने करते हुए, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो पिच अगर हल्का सा भी ड्राई हुआ, स्लो हुआ, तो वहाँ पे इंडिया को ज़्यादा एडवांटेज है क्योंकि इंडिया के पास 2 विकेट टेकर मौजूद हैं जिनको लाइट असिस्टेंस चाहिए, और वहाँ पे उनकी जो लाइनर लेंथ है और जो वैरायटी उनके पास मौजूद है कुलदीप और जडेजा के हवाले से, तो वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग को, क्योंकि न्यूजीलैंड की बैटिंग को पेस चाहिए। वो स्ट्रगल करते हैं जहाँ पे उनको बॉल थोड़ा रुक के स्लो आता है। यही वो एक ऐसा ग्रे एरिया आएगा अगर आज की पिच भी जो है वो स्लो बनाई गई, क्योंकि बॉम्बे के अंदर हमने अभी तक स्लो पिच नहीं देखी, वहाँ पे अभी तक हमने बाउंस देखा है, अभी तक हमने एक बैटिंग ट्रैक देखा जहाँ पे टिंच ऑफ ग्रास के साथ बॉल कैरी करता है। अगर आज ग्रास नहीं है, अगर आज स्लो है, तो दैट्स वेयर आई एम सेइंग कि ये एक ग्रे एरिया आएगा अथॉरिटीज़ के ऊपर कि ये कैसे हो गया कि एक टीम को उसी की फेवर की जो है वो आप लगातार पूरा टूर्नामेंट में जो है वो पिचेस जो है प्रोवाइड कर। अच्छा, हमने अभी कुलदीप की भी बात की, हमने अभी जडेजा की भी बात की, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मिचेल सैंटनर का आज हफीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, और पिच के ऊपर ही उनका ये कहना था कि अगर तो फ्रेश पिच हुई तो जाहिर है द रन स्कोरिंग विल बी बेटर, बट अगर यूज्ड पिच हुई तो उसमें टर्न ज़्यादा ऑन ऑफर होगा, तो दैट इज़ समथिंग जिसके लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं। उनके पास एक गेम प्लान ऑलरेडी है माइंड में मिचेल सैंटनर के पास कि अगर यूज्ड पिच हुई तो उसके लिए भी वी हैव द बेस्ट रिसोर्सेज। सैंटनर की बहुत शानदार फॉर्म है इस पूरा टूर्नामेंट में, अगर कोई स्टैंड आउट किस्म की परफॉर्मेंसेज एज ए स्पिनर किसी ने दी है जिसने इंप्रेस किया, ये हमेशा थ्रेट के तौर पर जो है इस्तेमाल होते हैं, और दूसरी टीम के लिए हमेशा इनके 2 ओवर या 4 ओवर का जो भी स्पेल ये करते हैं वो थ्रेट होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो सैंटनर है, इनका आज का रोल अगर पिच टर्न भी हो रहा हुआ या ना भी हो रहा हुआ तो न्यूजीलैंड की विक्ट्री के अंदर अहम रोल प्ले करेगा। अगर न्यूजीलैंड ने अच्छा करना है तो सैंटनर का अच्छा करना बहुत जरूरी है। क्या बात है। देखिए यूज पिच का ये है कि लास्ट मैच कब हुआ, यहाँ पे ये देखना पड़ेगा। अगर 4-5 दिन पहले हुआ है तो शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे। हाँ, उसके लास्ट मैच मेरा ख्याल है वो अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, जिसमें रेड ग्लेन मैक्सवेल सॉइल पे 200 ज़रूरी है किया। कि ग्रास नीचे होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर बेनिफिट करेगा, इंडिया को करेगा। अगर थोड़ी बहुत ग्रास है, मॉइस्चर है, रखते हैं उसके ऊपर, तो शायद न्यूजीलैंड को भी जो बाउंस उनको चाहिए कैरी करेगा वो मिल जाएगा। प्रॉब्लम कभी कभार होती है कि हम लोग डोमेस्टिक खेल रहे हैं कि 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद उसी पिच पे खिला रहे हैं, उस पर फिर मार्क्स आ जाते हैं, बॉल के भी आ जाते हैं, फुट होल भी बन जाता है, वो डिफरेंट होती है। इनका आईसीसी का ये फ्रेश पिच पे वो खिलाते हैं, पिच नंबर 7 थी या 6 थी, कुछ दिया हुआ ऐसे फ्रेश पिच नहीं है, यानी कि यहाँ पे इस टूर्नामेंट में मैचेस हुए हैं और हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। अगर पिच टूटती नहीं है, थोड़े बहुत ग्रास है जो कि बाउंडिंग के लिए की जाती है, फिर मेरे ख्याल से इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर ग्रास नहीं है फिर बहुत ज़्यादा फेवर बन सकती है इंडिया को। बट ऑब्वियसली दैट्स समथिंग जो हम पिच रिपोर्ट के ऊपर जरूर इसका मुवाजना करेंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि बाद में अक्सर प्रोसेस की बात करते हैं, तो इंडिया 2019 के वर्ल्ड कप से जब बाहर हुए उसके बाद एक लेंथी प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया। मेरा ख्याल है बाकियों के लिए बड़ा यूजफुल होगा कि उन्होंने 50 मुख्तलिफ खिलाड़ी खिलाए 66 वनडेज के अंदर, और जब मार्च से लेकर अक्टूबर का सीजन आया तो उन्होंने 15 वनडेज के अंदर जो है 24 या गालिबन 25 खिलाड़ी में से खिलाड़ी सिलेक्ट किए जिनकी सही जगह बनती थी, जिसकी वजह से इंडिया हमें इतनी फॉर्मिडेबल जरूर नजर आई। यहाँ पे मैं बाजी भाई और वहाब भाई दोनों के पास आना चाहता हूं कि अगर हम जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, अगर उनके पहले 10 ओवर्स की बात करें 9 मैचेस के अंदर, 225 में से 175 उनकी डॉट बॉल्स थी। वैसे हम ओवरऑल देखते हैं तो 50 ओवर्स उनके 9 इनिंग्स के अंदर डॉट बॉल्स के थे, यानी कि 303 डिलीवरीज, और उसी के साथ नीचे एक और जो बैलेंस नजर आता है, ट्रेंड बोल्ड नजर आता है। तो वहाब भाई आपसे शुरू करते हैं, हाउ डू यू सी देम परफॉर्मिंग टुडे? देखिए एक्सेप्शनल केस है इतने ज़्यादा डॉट बॉल्स कर देना आपके लिए, और हम शुरू से यही बात करते आए हैं कि ये टीमें इसलिए कामयाब थी कि इनके बॉलर्स को उनके जो रोल्स हैं वो बहुत पता थे, और आई थिंक कि उनका मेजर गोल ये था कि जो टीम की डिमांड है उसको किस तरीके से पूरा किया जाए। हमने देखा कि बुमराह को अगर नए बॉल से स्विंग नहीं मिल रहा और विकेट थोड़ा बैटिंग है, थोड़ा अटैकिंग है, तो उनको अपना रोल पता है कि फौरी तौर पे वापस आ जाना, डॉट बॉल्स करने और 4 ओवर करने, और उसके बाद मेरा जो काम है वो बाद में आखिरी 20 से 22 ओवरों के अंदर शुरू होगा, जिधर मुझे जो कप्तान है वो दोबारा से यूटिलाइज़ करेंगे अगर रिवर्स भी होगा।
सेम गोज़ टू ट्रेंट बोल्ट। थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट नए बॉल पे वो इफेक्टिवली रहे, लास्ट मैच में उन्होंने आउट किए। कोई एक दो और आपको अच्छी परफॉर्मेंसेस ज़रूर नज़र आ सकती हैं वर्ल्ड कप में, लेकिन एक कंसिस्टेंसी का लेवल और एक कमिटमेंट का लेवल है वो इन प्लेयर्स की तरफ से ज़्यादा है। इसमें इसी प्रोसेस के साथ मैं बाजिद भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। बाजिद भाई, ये जो हमने प्रोसेस का तस्करा किया कि 2019 वर्ल्ड कप के बाद से उन्होंने 50 मुख्तलिफ खिलाड़ी खिलाए इंडिया ने और इतने फॉर्मिडेबल हमें नजर आए, दे मेड श्योर दैट दे गोइंग टू प्ले द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। बिल्कुल, और जैसे आपने बताया कि 6 महीने 8 महीने पहले वर्ल्ड कप से उन्होंने शुरू कर दिया कि हमने ये प्लेयर्स हैं इनमें से ही वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो आप जो स्काई की डेवलपमेंट देखते हैं कि अब उसको वनडे क्रिकेट में अपना रोल पता है या उसको पता है कि मैं किस नंबर पे खेलूँगा। दूसरा जो बिहाइंड द सीन्स काम है वो उस पर हम गौर नहीं कर रहे। 3 प्लेयर ऐसे हैं जो अनफिट होके वापस आए हैं। बिल्कुल, बुमराह हैं जो वापस आए हैं, अय्यर हैं जो वापस आए हैं और केएल राहुल आए हैं। अब उसमें एक चीज़ जो हम पाकिस्तान में बहुत डिस्कस की जाती है और इग्नोर होती है कि जब प्लेयर अनफिट होता है उसके बाद उसकी वापसी कितनी अच्छी होती है। बुमराह ऐसे वापस आए कि लगता है ही इज़ फास्टर, फिटर, स्ट्रॉन्गर देन एवर। केएल राहुल अब वापस आए हैं, कोई फॉर्म में उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो उतनी बल्कि बेहतर बैटिंग कर रहे हैं। इवन शहरियाज अय्यर वापस आए हैं, उनको भी प्रॉब्लम थी बट वो भी आए हैं वापस और ही हिट द ग्राउंड रनिंग। तो इसमें सिर्फ उनके डॉक्टर्स का कमाल नहीं है कि डॉक्टर्स ने उनको फिट कर दिया और ट्रेनर्स का कमाल नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आपका ये सारा कुछ एक सिम्त में चले, यू हैव अ मेडिकल स्टाफ और अ ट्रेनिंग स्टाफ और मेंटल, मतलब जो मेंटल एस्पेक्ट को ट्रेन कर सके, वो जब तक आपके पास कंप्लीट ना हो तो फिर ये 9 के 9 मैच जीतना कोई मतलब हवा में नहीं हो जाता। बिल्कुल लाइट बात नहीं है। और इन सब से ज़्यादा जो ज़रूरी है कि आपको वो बैकिंग आपके कैप्टन से भी मिले भी कि ऑफ कोर्स रोहित शर्मा हैज़ बीन नोन टू प्रोवाइड दैट बैकिंग टू ऑल हिज प्लेयर्स के जब आप वापस आएंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बार बार इस बात का जिक्र भी किया है। बट रोहित शर्मा हिमसेल्फ इन वानखेड़े स्टेडियम इन ODIs 4 मैचेस में जो है सिर्फ 12 की एवरेज है, 50 रन्स हैं। डू यू थिंक दिस विल बी समथिंग ऑन हिज माइंड? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इतनी क्रिकेट खेली है T20 IPL में, T20 में ऑफ कोर्स थोड़ा बेहतर उनका एवरेज है 41 का, बट इफ यू लुक एट रोहित शर्मा's परफॉर्मेंस इन वानखेड़े इन जस्ट 4 मैचेस, थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर लगेगा उनको आज टू गेट ऑफ द मार्क। अब ये थोड़ा सा तो हो गया बैक ऑफ द माइंड, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ज़्यादा जो चीज़ होगी वो रोहित और कोहली के, वो ये है कि नॉकआउट स्टेजेस में ये परफॉर्म दोनों नहीं कर पाए। जो हिस्ट्री, जो रिसेंट हिस्ट्री ये है कि जब जब ये बड़े मैचेस में पहुंचे हैं, मतलब सेमीफाइनल में जब तक पहुंचे हैं, तो इन दोनों की परफॉर्मेंस नहीं आ रही। और राइट नाउ यही बैकबोन है ऑफ इंडियाज़ बैटिंग। और कैप्टन है प्लस वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर इन ODI क्रिकेट कोहली, ये बॉक्स उनको टिक करना है। ये ठीक है, ग्राउंड के स्टैट्स तो हैं, लेकिन असल स्टैट्स जो उनके दिमाग में वो होंगे कि जी सेमीफाइनल है, बड़ा मैच है, इस सिचुएशन में, नॉकआउट सिचुएशन जो मतलब बनाना पील रही है इंडिया के लिए। हफीज़ ने तस्करा किया कि 2013 में ये लास्ट ICC ट्रॉफी जीते थे, तो उसके बाद से ये क्रॉस नहीं कर सकते। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो वो 2000 में जीते थे। बट ये 2 प्लेयर्स, क्योंकि इनकी सेमीफाइनल में वो परफॉर्मेंस नहीं, मेरे ख्याल शायद 50 भी नहीं है, काफ़ी दफ़ा खेले हैं ये। क्योंकि आप तस्करा कर रहे हैं तो कोहली के ऊपर भी बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल है गालिबन 6 इनिंग्स में 73 रन उन्होंने बनाए हैं। और वैसे तो हम उनको चेज मॉन्स्टर जरूर मानते हैं, लेकिन नॉकआउट में जैसे बाजी भाई ने कहा, विराट कोहली उतने इम्पैक्टफुल नहीं रहे। रोहित शर्मा और विराट कोहली मेरे ख्याल 2 ऐसे मेन प्लेयर्स इनके जरूर रहे जो अच्छी फाउंडेशन सेट करते हैं। तो राशिद भाई, फॉर कोहली एंड रोहित, व्हाट्स योर टेक टुडे? आपको लगता है कि यार शायद आज कुछ डिफरेंट होगा? डिफरेंट इसलिए हो सकता है कि होम पे खेल रहे हैं, कंडीशन सूट करती हैं इन लोगों को। बाकी जो मैचेस हैं बाहर खेले हैं, दुबई में खेले हैं, श्रीलंका में लास्ट जो नॉकआउट शायद कहीं श्रीलंका में ये जीते में, जहाँ तक याद पड़ता है, या 2013 या 14 में 2016 का जो नॉकआउट, जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 का मैच हुआ था, उसमें रोहित ने 43 किया था, T20 का था इवन दो, बट वो नॉकआउट गेम का प्रेशर उनका सरपास होता हुआ नजर आया है इनके ऊपर। जिस तरह से इन्होंने खेला है ये वाला टूर्नामेंट, पूरा लीग मैचेस खेले हैं, वो तो आउटस्टैंडिंग, किसी टीम को करीब भी नहीं आने दिया। एक मैच ऐसा था 229 किए थे शायद अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 100 रन से जीत गए। तो वो एक सबसे छोटा मैच आप कह सकते हैं। तो उसमें तो कोई मुकाबला नज़र ही नहीं आया। लेकिन नॉकआउट डिफरेंट होता है, इसके पूरे कंट्री स्टेक पे है, BCCI स्टेक पे इस वक्त, क्योंकि उन्होंने तैयारी इसी की है कि हम इस दफ़ा जीतेंगे और मेंटली तौर पे जीते हुए। और जैसे टीम है
जो परफॉर्मेंस लग भी ऐसे ही रहा है। लेकिन न्यूजीलैंड, जैसे हमारे पैनलिस्ट ने बात की है, न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो इनको थ्रेट कर सकती है। एग्जैक्टली इसी हवाले से हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। इंडिया के बारे में तो हमने काफ़ी गुफ्तगू की, उनके पेसर्स, स्पिनर्स, बैटर्स, टॉप ऑफ द ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर। मेरा ख्याल है अब न्यूजीलैंड के हवाले से जरूर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद आप लोग कहीं नहीं जाइएगा। विल बी राइट बैक। टुडे हैपेंस टू बी द फर्स्ट सेमीफाइनल इन बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। गेम ऑन है। Right, welcome back to Game On है, first semi-final of the ICC Men's Cricket World Cup 2023 today between India and New Zealand. मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा आज का मैच। दोनों टीम्स के ऊपर हम थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस जो है लेके आए हैं और उसके ऊपर भी हम बात कर रहे थे। हमने कुछ स्टैट्स भी शेयर किया आपके साथ, इंडिया की जो स्ट्रेंथ्स हैं और कुछ जो वीकनेसेस हैं वो कैसे आज बैलेंस आउट होंगी इन वानखेड़े स्टेडियम। नाउ मूविंग टुवर्ड्स न्यूजीलैंड, क्या स्ट्रैटेजीज लेके वो आएंगे। ऑफ कोर्स हमने ये बात ज़रूर की कि दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड एंड दे come out with their best plans, you know, especially in knockout games और high pressure games में भी ज़बरदस्त performances रही हैं, especially अगर आपको वो last knockout game याद हो वर्ल्ड कप 2019 का between these two teams। लेकिन अगर हमने ब्रेक से पहले स्पिन के बारे में बात करें तो थोड़ा सा बैटिंग के ऊपर आते हैं। बी के यहाँ पे ऑफ कोर्स वी नो के इंडिया हैव बीन वेरी गुड विद द बॉल। अगर हम देखें स्पेशली विद द स्पिनर्स, न्यूजीलैंड दूसरी साइड पे जो है टॉप ऑफ द टेबल है व्हेन इट कम्स टू देयर रन रेट अगेंस्ट स्पिन। तो जितनी भी टीम्स इस वर्ल्ड कप में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, टॉप 2 टीम्स विदाउट एनी सरप्राइज न्यूजीलैंड, नंबर 2 इंडिया, तीसरी जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, ये भी नॉकआउट के लिए क्वालिफाई किया है, चौथी पाकिस्तान है बेस्ट रन रेट और साउथ अफ्रीका है उनके बाद। बट जो 2 टॉप टीम्स आप देख रहे हैं, 51 की एवरेज है न्यूजीलैंड की अगेंस्ट स्पिन इन दिस वर्ल्ड कप। नहीं, इंडिया तो स्पिन को खेल ही बहुत अच्छा रहा है, हालांकि सिर्फ राइट हैंडर्स है। न्यूजीलैंड को ये फ़ायदा है कि इनके टॉप 6 में लेफ्ट हैंडर्स काफ़ी हैं और लेफ्ट हैंडर्स काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करते हैं। रचिन की फॉर्म इसमें बहुत एग्जाम्पलरी है। तो जब स्पिनर्स लग रहे हैं तो प्रॉब्लम अगली टीम को ये है कि कॉम्बिनेशन राइट एंड लेफ्ट हैंड का है, तो कौन सा स्पिनर लगाएं, वो आपको रिफ्लेक्ट भी हो रहा है उनकी एवरेज। डैरिल मिचेल स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, केन विलियमसन बहुत अच्छा खेलते हैं, रचिन बहुत अच्छा खेलते हैं, इवन कॉनवे जो अभी तक एक आधे मैच में उन्होंने शुरू में परफॉर्म किया, उसके बाद परफॉर्मेंस कम है। बट इनका होना दूसरी स्पिनर्स को टैकल करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल कॉनवे की हम बात कर ही दी है, ले उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। हमने देखा कि जब वो स्कोर करता है तो न्यूजीलैंड काफ़ी हद तक मैच जीत जाता है। आई थिंक मेन शायद हफीज़ ने ये बात की कि स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड के स्टार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज कॉनवे ज़रूर रन्स करे और उसके रन्स करने का टेम्पो बहुत ज़बरदस्त होता है, तो वो प्रेशर ऑपोजिशन पे ज़्यादा डालता है। इंडिया की टीम जो बेस करती है ना, जब कभी भी आप उनके पिछले 5-10 साल की कामयाबियां उठा लें, जब से बड़े नाम गए और रोहित और विराट कोहली ने स्टेप अप किया, टॉप लेवल के, वो वन ऑफ द पिलर हैं इंडियन बैटिंग में। जब वो जल्दी आउट हुए हैं तो इंडिया की दूसरी जो बैटिंग, चाहे वो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अभी अगर हम बात करें कि राहुल हैं, श्रेयस अय्यर बहुत फॉर्म में है, शुभमन गिल हैं, सूर्या कुमार यादव हैं, लेकिन जब विराट और रोहित इन्होंने स्कोर नहीं किया तो दे कुडंट टच द पार रन्स। ट्रू, चाहे बैटिंग पहले हो या चेस करते हुए, दे नेवर क्रॉस द लाइन अगर इन 2 बंदों की कंट्रीब्यूशन नहीं है। आज के पूरे टूर्नामेंट जहाँ पे आज वो पहुँचे हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जब इन्होंने स्कोर किया ये जीतते रहे हैं, क्योंकि उनमें इन दोनों की कंट्रीब्यूशन है। आज के मैच की जो प्लानिंग न्यूजीलैंड के लिए होनी चाहिए कि हाउ टू गेट दीज 2 बैट्समैन एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि जब ये इनको आउट करते हैं तो ये पार रन्स को टच नहीं कर पा रहे, वो पार रन्स जहाँ पे जीता जा सके मैच। तो अगर आप अंडर पार रह जाते हैं तो आप अंडर प्रेशर आते हैं, आपकी बॉलिंग पे प्रेशर पड़ता है। तो मुझे लगता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लानिंग होगी न्यूजीलैंड की तरफ से वो ये होगी कि रोहित शर्मा
और विराट को कैसे जल्दी से जल्दी आउट किया जाए ताकि बाकी बैट्समैनों पे पार रन्स को रीच करने का प्रेशर पड़े। एग्जैक्टली अर्ली विकेट्स वाला जो फॉर्मूला ऑब्वियसली उनके लिए हैंडी जरूर आएगा, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि पिछले मैच की अगर हम बात करते हैं तो चौथे और पांचवें नंबर पे इंडियन बैटर्स ने भी सेंचुरीज मुकम्मल की, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर। अब जरा न्यूजीलैंड के ऊपर ही अगर हम मजीद कॉन्टेम्पलेट करें तो राशिद भाई आपकी जानिब बढ़ता और रचिन रविंद्रा उनके लिए एक बड़ी अच्छी फाइंड रही है। विल जंग के बाद उनको नंबर 2 के ऊपर हमने देखा कि यार वो उम्दा बल्लेबाजी करते रहे, बल्कि मोस्ट रन बनाए उन्होंने इस वर्ल्ड कप के एडिशन के अंदर, गालिबन 565 रन है उनके। और जो एक और इसमें पॉजिटिव नजर आता है कि 2019 के वर्ल्ड कप में केन विलियमसन हाईएस्ट रन गेटर थे। रविंद्रा ने जान डाली इनकी बैटिंग लाइनअप में, और जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं ये कॉनवे के साथ कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। हालांकि जहाँ पे स्विंग थोड़ी सी होती है मिडिल लेग से, वहाँ कॉनवे को प्रॉब्लम हुई है, इनको नहीं हुई है। ये सीधा खेलते ज़्यादातर फुल फेस ऑफ द बैट, लेकिन वो अपोजिट उन्होंने खेला, बिल्कुल वो भी डेंजरस है अगर ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिलता है। तो रविंद्रा की प्लेयर फॉर न्यूजीलैंड। और इसमें सर चूंकि हमने पहले इससे स्पिनर्स की भी गुफ्तगू की थी, तो सेंटर के हवाले से एक और चीज़ भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर आप व्यूअर्स को मजीद उसके हवाले से बता सकते हैं। एक वैगन व्हील आपके इनफैक्ट वैगन ये देखिए राइट हैंड बैटर्स के ऊपर इनकी लेंथ डिफरेंट है। ये लग रहा है कि ये पिच के लिहाज से उन्होंने डिलीवरीज की हैं कि 8 मीटर पे भी की है, 6-4 पे भी की है, 2 पे भी की है, जहाँ पे ब्रेक मिल रही है वहाँ बीच में की है। फिर उनके बॉल राइट हैंडर पे इसलिए लेग स्टम्प पे भी गई है कि वो ड्रिफ्ट करके गई है और वहाँ से वो स्लिप लगी हैं। तो ये बॉलर, जैसे आपने अभी रविंद्रा की बात की, तो बॉलिंग में स्पिन डिपार्टमेंट में ये बहुत क्रिटिकल है इंडिया के लिए। बिल्कुल है सर। और यहाँ पे जरा वहाब भाई से ही पूछना चाहता हूँ, वहाब भाई बुमराह की अभी राशिद भाई ने बात की, उन्होंने लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट भी बात की कि यार इंडिया कहीं ना कहीं डिफिकल्टी जरूर क्रिएट कर सकता है। सिराज हो, शामी हो, कुलदीप हो, आपको लगता है अगेंस्ट द ओपनर्स ऑफ न्यूजीलैंड कौन ज्यादा पिवटल हो सकता है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बुमराह जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं लेफ्ट हैंडर्स को, क्योंकि उनका बॉल बड़ी अच्छी जगह से बाहर भी जाता है और अंदर भी आता है, वो दोनों स्विंग करते हैं। सिराज का जो एयर में ज़्यादा बेसिकली पता चल जाता है कि उसका बॉल किस तरफ ज़्यादा जाएगा। सो ये एक मेजर डिफरेंस है। अगर तो वो बुमराह को खेल लेते हैं अच्छा और वो बुमराह के ओवर्स निकाल लेते हैं तो हो सकता है वो सिराज के ऊपर जाएँ अटैक करने। ये तो आप देखेंगे कि पहले 1-2 ओवर्स के बाद जो न्यूजीलैंड की टीम है, दे विल अटैक द इंडियन बॉलिंग, दे विल नॉट हेजिटेट टू गो आफ्टर देम। ट्रू। उसके बाद जो मेजर आएगा वो शामी का एक इफेक्ट आएगा कि शामी, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स को हमने देखा उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स, तो ये देखना पड़ेगा कि वो उसको कैसे काउंटर करते हैं। शामी का क्योंकि पिछले एक ऐसी टीम के ख़िलाफ़ मैच था जिसमें उनको रन्स हुए जो अभी तक उन्हें पूरे टूर्नामेंट में नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं उनका थोड़ा बहुत जो है वो साइकोलॉजिकली, अगर आप छोटी टीम से अगर आपको मार पड़ जाए तो आपको साइकोलॉजिकली उसका इफेक्ट होता है। सो डिपेंडेंट अपॉन कि न्यूजीलैंड किस तरह का अटैक करता है, जो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप है, पहले 3 प्लेयर्स का आज बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि हमने देखा था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी रविंद्रा को खिलाने वाले जो थे वो केन विलियमसन थे, थ्रू आउट लंबा लेके जाने वाले। तो आज के मैच में भी कोशिश यही होगी कि केन जो है वो, या बीच में जो है वो कोई कहते हैं मिचेल कॉनवे, ये 2 ऐसे प्लेयर्स होंगे जो लंबा खेलना चाहेंगे, क्योंकि उनकी प्रेजेंस क्रीज पे जो है वो स्पिनर्स को भी जो है वो तंग करेगी और फास्ट बॉलर्स को भी। बिल्कुल। एंड स्पीकिंग ऑफ लॉन्जेविटी एंड विथस्टैंडिंग एवरीथिंग, अगर हम केन विलियमसन का नाम ना लें यहाँ पे ज्यादती होगी, क्योंकि केन विलियमसन वो प्लेयर है न्यूजीलैंड के लिए जिनका अब जो है रिकॉर्ड बुक्स में नाम आ गया। ऑफ कोर्स ऑलरेडी बहुत तरह के रिकॉर्ड्स होल्ड करते हैं ये, बट अभी फॉर नाउ मोस्ट रन्स फॉर न्यूजीलैंड इन वर्ल्ड कप, सो ही इज द बिग मैन इन बिग टूर्नामेंट्स फॉर न्यूजीलैंड। आप देख सकते हैं स्क्रीन्स पे। हफीज़ यहाँ पे केन विलियमसन की बात करें, ऑफ कोर्स इस लिस्ट में और भी बड़े ग्रेट्स हैं, स्टीवन फ्लेमिंग है, रॉस टेलर है, of course Martin Guptill, Scott Styris, these greats have contributed a lot to New Zealand cricket. Kane Williamson अब बन गए हैं मोस्ट हाईएस्ट रन गेटर फॉर न्यूजीलैंड इन वर्ल्ड कप्स। तो इस एक्सपीरियंस के साथ जब वो आएंगे आज के नॉकआउट मैच में, विद ऑल ऑफ दैट प्रेशर बिहाइंड हिम, कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा इनका। एंड ऑफ कोर्स इस कॉन्टेक्स्ट में भी कि उनके साथ जब रचिन बैटिंग करते हैं या दूसरे एंड पे जो भी बैटर होते हैं उनको डीपर इनटू द गेम लेके चलें। देखिए, अगर आप न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात करें तो जो बॉन्डिंग फोर्स है वो केन विलियमसन ही रहे हैं। जो अंडर प्रेशर डालने वाले शॉट्स हैं वो डैरल मिचेल खेलते हैं। तो आज का मैच मैं ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि डैरल मिचेल सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होंगे इंडिया की टीम के। इम्पैक्ट वेल, अगर हम विलियमसन की बात करें, आज देखते हैं न्यूजीलैंड केन दे डू इट और नॉट। यहाँ पे एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। व्हेन वी कम बैक वी विल टेक यू टू मुंबई फॉर ऑल द प्री मैच इन्फॉर्मेशन। कहीं मत जाइएगा, गेम ऑन है।
राइट, वेलकम बैक खवातीन और ज़ात। इसी मौके पे मैं ज़रा बाजिब भाई के पास भी जाना चाहता हूँ। बाजिब भाई, एक तो हमें वहाँ पे लोकल ज़रूर नज़र आया पिच रिपोर्ट के ऊपर, जब इस तरह की खबर आ जाए कि यार पिच चेंज करें जिस पे एक्चुअली खेलना था उस पर नई सरफेस पे नहीं खेल रहे हैं, तो ब्रॉडकास्टर्स के लिए ज़रा थोड़ा मसला ज़रूर होता होगा कि यार अब ठीक है आपने मैच किसका है? मैच इंडिया का है इसीलिए, लेकिन उनको मसला हुआ ना आज नहीं, मसला नहीं, कमेंटेटर ज्यादा किसके होंगे? उन्हीं के होंगे, तो मेरे ख्याल कोई बात नहीं करेगा। बात पिच की बात करें आप, वो तो जो पिच रिपोर्ट करेगा वो तो उनके हाथ में है। इंडिया का मैच है तो इंडियन ब्रॉडकास्टर ज्यादा होगा ना, दैट इज नेचुरल, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है उनके, तो वो पिच रिपोर्ट कवर कर रहा है, उसका पिच से कोई ताल्लुक नहीं है, पिच प्रिपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो इशू ज़रूर है, जो इशू हाईलाइट हो गया है, जो उनके आईसीसी के क्यूरेटर ने भी बोल दिया है और ख़बर इंग्लैंड से छपी है, तो जाहिर है प्रॉब्लम तो है जो कि खबर आई है बाहर। आईसीसी का मौक़िफ़ ये है कि ज़रूरी नहीं है, कोई लॉ नहीं है या कोई रूल नहीं है कि जो नॉकआउट गेम हो वो फ्रेश पिच पे हो। अमूमन फ्रेश पिच पे होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्रेश पिच पे होता है। एक जो मैंने आपको एग्जांपल कोट की, वो चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान जीता था इंग्लैंड में, वहाँ पे यूज पिच पे हुआ था। अब यूज भी जैसे राशिद भाई कह रहे हैं, यूज ऐसे नहीं है कि इस पिच पे 5, 6, 8 मैच 2 मैच, तो वो पहले हुए। ये बिल्कुल फ्रेश, ये ऐसा पिच प्रिपेयर होना जो अकॉर्डिंग टू जो प्लान जो बना हुआ था उसमें ऐसा पिच प्रिपेयर होना था जो बिल्कुल ही फ्रेश हो, जिसपे वर्ल्ड कप का मैच ना हो। बाजिब भाई, सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि इसको आईसीसी एडमिनिस्टर करेगा या बीसीसीआई चूज करेगा कि हम इस पिच पे आज खेलेंगे? आईसीसी के अंडर आता है, लेकिन जो आईसीसी, हम तो पहले यही समझते थे ना कि फ्रेश पिच पे ही होना चाहिए। जो आईसीसी ने बयान आज ये दे दिया है कि बयान क्या, उनकी खबर ये निकली है कि ज़रूरी नहीं है फ्रेश पिच, तो ऑलरेडी वो उस तरफ चल पड़े हैं। तो वो ऑलरेडी उस तरफ चल पड़े। राज भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं, वही बात जो अभी हफीज भाई ने बात की, एक उसमें चेंज कर सकते हैं कि बाजिद को भी सही पता होगा कि कभी कभार लोकेशन जो पिच की होती है ना वो सही नहीं होती। ब्रॉडकास्टिंग के लिए कैमरास ज़्यादा लगते हैं, तो उसमें जैसे फैसलाबाद में हमें अमूमन प्रॉब्लम होती है, हम 2 या 3 पिचेस से में स्टे करते हैं, हम बाहर जा नहीं सकते क्योंकि पीछे होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैचेस हो चुके हैं, 2 मैचेस टेलीवाइज हो चुके हैं। तो ये वाला जो पिच जो बनना था ओरिजिनल, वो बिल्कुल सेंटर में था, ये ऑफ सेंटर उन्होंने किया। क्योंकि अगर 14 या 13 पिचेस है, नंबर 7 है, इसके बाद माइनस इधर कर लें, माइनस इधर कर लें, प्लस कर लें, तो आपको नंबर 7 मिल जाती है यहाँ पे, तो वो तो ठीक है। अगर ये लॉजिक देते हैं तो मान सकते हैं यार कैमरा की पोजीशन सही नहीं होती, लेकिन उसमें 2 मैचेस हो चुके हैं। जो पिच दिखाई नहीं हमें, इतना आइडिया हो जाता है यहाँ से बैठ के, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है ग्रास कितनी है, रेडिश कितना नज़र आ रहा है। अगर इंडिया तो जीत जाता है वो बात अलग है, लेकिन अगर पिच की वजह से जीतेगा ना, पूरा वर्ल्ड कप कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। पूरा वर्ल्ड कप कंट्रोवर्शियल इस वजह से हो जाएगा, 96 में भी ऐसे ही हुआ था, और वो आवाज़ें आज तक आ रही हैं कि पिच किसने बनाई थी। इंडिया को लॉस हुआ था उसमें, और अरविंदा ने बैटिंग, वो हमने पहले ही बात की थी, और स्क्वायर टर्नर सेकंड इनिंग्स में हुआ है, और वो पूरा वर्ल्ड कप ख़राब हो गया, और आज तक वही याद करते हैं। हमें याद करते हैं बेंगलोर का 96 क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल ज़्यादा डैमेजिंग था इंडियन क्रिकेट के लिए। और आज का मैच भी अगर जीतते हैं, अगर 300 350 रन बनते हैं, दोनों टीम करती हैं तो ठीक है। लो स्कोरिंग चला जाता है, जैसे डीके ने कहा है कि शायद ना बने 300, इसका मतलब है कि 200 अगर बन रहे हैं तो फिर तो ख़राब हो जाएगा गेम, तो फिर ख़राब नज़र आ रहा है, और डीके ने बिल्कुल यही डायरेक्ट किया। लेकिन जो यूज पिच है ना, वो अगर पहले मैच हुए हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी प्रिपरेशन फ्रेश होनी चाहिए। तो कंडीशन ऐसी हैं कि वहाँ पे पहले बैटिंग करना ज़्यादा एक ऑप्शन आपको मिलती है, क्योंकि जहाँ पे स्लो और टर्न अगर आपको लगता है कि बाद में होना है, या स्लो पिच है या लेस प्रिपरेशन है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं है, उसमें बाउंस नहीं आएगा, तो वो जो बेस्ट पार्ट है वो तो पहले ही खेलने का ना। तो जो टॉस जीत के जो फैसला है वो तो बिल्कुल ठीक किया रोहित ने कि यहाँ पे रन्स ऑन द बोर्ड विल गिव देम मोर अपॉर्चुनिटी। लेकिन दूसरी तरफ अगर ड्यू पड़ती है तो फिर न्यूजीलैंड के लिए भी ये ऑप्शन क्लियर हो जाती है कि अगर ड्यू पड़ी 15 ओवर के बाद, तो अगर पहले 15 ओवर का वो जो स्विंग है, जिसे फास्ट बॉलर ने यहाँ पे जो है विद द शेप या विद द स्विंग थोड़े से आउट किए हुए हैं, अगर ये उस पहले 15 ओवर को अपनी अच्छी टेक्निक के साथ, अपनी बेहतर बैट्समैनशिप के साथ गुजार जाते हैं, और अगर ड्यू स्टार्ट होती है 15-20 ओवर के बाद, तो वो न्यूजीलैंड को फ़ायदा दे सकती है। राइट, अभी हमने खैर पिच के ऊपर भी बात की, हमने टॉस का भी देखा, बट वहाँ यहाँ पे अगेन आपसे वही सवाल है, व्हाट कुड बी ऑन रोहित शर्मा's माइंड के इस पिच पे आज के मैच में, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या इनफ होगा ऑन द बोर्ड?
देखिए ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। चाहेंगे तो वो यही कि 300 से प्लस रन्स करें, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो अंडर प्रेशर नहीं है। रोहित की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी जो थी इवन टॉस जीतने के बाद भी वो उस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से यूजुअली वो आते हैं टॉस पे और वो बात करते हैं। साइकोलॉजिकली उन्हें पता है कि विकेट चेंज हुई है। केन विलियमसन ने बड़े तरीके से कहा कि इट्स अ ह्यूज विकेट, और ये चीज़ें जो हैं ये मेंटली तौर पे जो है वो इंडिया को पता है कि दे हैव ऑप्टेड फॉर दैट। तो कहीं ना कहीं ये रन्स लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहाँ तक रहेगी न्यूजीलैंड की बात, आई डोंट थिंक दे विल लेट इट गो दैट ईजी। ये देखना पड़ेगा कि पहले 10 से 15 ओवरों के गेम में क्या डिफरेंस आता है। ये देखना पड़ेगा कि इंडिया कैसे खेलता है अपने पहले 10 से 15 ओवर, बिकॉज वो बेसिकली बेस क्रिएट करता है। और इंडिया जो है वो क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेते हैं बाद में, अगर ऊपर से 2 जल्दी आउट हो जाए तो केएल राहुल और रोहित विराट कोहली थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बट डिपेंड करेगा कि किस तरह मोल्ड करते हैं, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स के लिए एक ऐसी सिचुएशन है जो पहली दफ़ा खेल रहे हैं वहाँ पे। लेकिन फॉर ऑल आवर व्यूअर्स आउट देयर एज वेल, जब हम बैटिंग फर्स्ट की बात करते हैं, बैटिंग सेकंड की बात करते हैं, कितना डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर हम नई बॉल की भी बात करें, फिर हमने ड्यू की बात की है, फॉर ऑल आवर व्यूअर्स आउट देयर, अगर वो 300 प्लस पोस्ट भी करता है, आपको लगता है न्यूजीलैंड को सेकंड इनिंग्स में डिफिकल्टी हो सकती है अर्ली ऑन, कहीं रुकना भी पड़ सकता है? देखिए इट्स अ माइंडसेट। न्यूजीलैंड जो है वो प्रॉब्ली तैयार है, उन्हें पता था कि ये सिचुएशन आ सकती है जिधर उनको चेस करना पड़ेगा, और ये भी हो सकता है कि उनको 300 रन चेस करना हो। हमने पहले भी बात की थी कि न्यूजीलैंड इज़ द ओनली टीम जिसने 380 किया है वाइल्ड चेजिंग, या पाकिस्तान ने 300 प्लस रन किए थे। सो ये उनके पास ये क्वालिटी है कि वो उसको प्लान कैसे करेंगे। 300 सवा 300 रन्स भी होंगे तो न्यूजीलैंड विल बी ऑन द टॉप, क्योंकि उनके पास बैट्समैन ऐसे हैं जो कि मैच को लंबा लेके जा सकते हैं। सो प्रॉब्ली न्यूजीलैंड को और कुछ नहीं करना। अगर न्यूजीलैंड 50 ओवरों तक खेल जाएगा चेस में तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू विन दिस गेम। सो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू विन। जरा बाजी भाई की जाने भी बढ़ते हैं इसी बात के साथ। बाजी भाई, अब आप रोहित को देखते हैं बैटिंग फर्स्ट, आपको लगता है एक अच्छा मैमॉथ टोटल जो है वो पोस्ट करने की कोशिश करेंगे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड हो सकता है उनको रिस्ट्रिक्ट करना चेज में और डिफिकल्ट अपना जो इंडिविजुअल उनका इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड है ओडीआईज में, उसको भी थोड़ा बेहतर करना चाहेंगे वो। स्टैट्स ये कहते हैं कि इधर 4 मैच हुए हैं, एक मैच 229 रन से जीता है बैटिंग फर्स्ट, 149 रन से उससे अगला मैच, और उससे अगला 302 रन से। हाँ जी। तो आप कह रहे हैं कि उसने बैटिंग फर्स्ट क्यों फैसला किया? प्लस जो मैच इधर चेसिंग टीम ने जीता है वो मैक्सवेल वाला मैच है, तभी 91 फॉर 7 थे, जो 20 ओवर हैं। पहले 15 ओवर से लेके 20 ओवर तक बॉल सीम ज़रूर करता है, वो आप निकाल दें तो फिर 20 ओवर के बाद सेकंड बैटिंग में पहली इनिंग से ज़्यादा बेहतर पिच हो जाती है, लेकिन वो 20 ओवर बहुत डिसाइसिव हैं। रोहित ने यही सोच के किया होगा, लेकिन इसमें इशू ये है कि क्योंकि पिच ड्राई है, क्योंकि पिच उस तरह का नहीं है जिस तरह मुंबई में होता है, शायद बॉल थोड़ा सा ग्रिप करे तो आपने जो 300 रन्स करने हैं वहाँ वो इतने आसानी से नहीं होंगे, क्योंकि बॉल बल्ले पे नहीं आएगा। ये एक थोड़ा सा इशू है, वरना स्टैट सारा कुछ यही कहता है कि बैटिंग फर्स्ट इज द वे टू गो। चलें जी, इवन दो दैट वी नो के जो दोनों टीम्स हैं वो बगैर किसी चेंज के जो है वो आ रहे हैं, फिर भी हम आज देखते हैं कि प्लेइंग 11 में हमारे एक्सपर्ट जो है किसके ऊपर ओनर्स रखते हैं कि आज कौन से ऐसे खिलाड़ी जो पिवटल होंगे। सो हूएवर वांट्स टू डू दी ओनर्स है दी प्लेइंग 11 राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आ जाइए सर अपने अपनी जगहों पर। नशिस्तों पे जी जी, नहीं निशिस्त तो है नहीं, वो जगह है इसलिए। नहीं जी सर, वहाँ पे आ जाइए जरा। मैं तुम्हें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, जल्दी आओ। तो किस चीज़ की प्रैक्टिस? चीफ सेलेक्टर साहब आ जाए। मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया। जी बैटिंग को लेके मैं हमेशा मानता हूँ कि रोहित और कोहली मेन पिलर, मैच को जितवाने में जो रोल ये प्ले कर सकते हैं। अगर ये जल्दी आउट होते हैं तो बाकी सब पे बहुत बड़ा प्रेशर है। तो फिर नॉकआउट मैचेस में इनकी परफॉर्मेंसेस वो बेहतर नहीं। यही तो चैलेंज है। देखें इंटरनेशनल टीम आपको चैलेंज, या हर दिन आपको चैलेंज बीट देगा। करना है, तो इनकी दोनों के लिए लास्ट जो नॉकआउट स्टेज पे इनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो इनको हाउंड कर सकती है या इनको चैलेंज कर सकती है। सही। लेकिन वैसे अगर ओवरऑल देखें तो बहुत ही शानदार इनका जो कॉम्पोजिशन सेट हुआ हुआ है, कंट्रीब्यूशन ऑल द वे, हर एक प्लेयर ने बड़े बड़े स्कोर किए हुए हैं। सूर्या कुमार ने बड़ी इनिंग्स नहीं खेली हुई लेकिन कंट्रीब्यूट किया हुआ है। इसी तरह जडेजा भी। तो बैटिंग लाइन को लेके मैं अभी भी समझता हूँ कि ये 2 प्लेयर जो हैं, अगर न्यूजीलैंड आउट करता है तो इनको एडवांटेज मिलता है, और अगर नहीं करता तो दे कैन गेट 280 to 90, जो इस पिच के ऊपर मुझे लगता है एक अच्छा टोटल। और गिल भी तेज हो सकते हैं किसी भी ऑन एनी गिवन डे। नहीं हो तो कोई भी सकता, हो तो आप भी सकते हैं, आप बहुत तेज हैं, लेकिन आप टीम में नहीं है। मैं जहाँ पे हूँ मेरा ख्याल है वही तेजी ठीक है। जी बॉलिंग की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, बॉलिंग में देखें आज डिपेंड करेगा कि इस बॉलर का क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि न्यूजीलैंड की लाइनअप में 3 से 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो ये बॉलर का जो इम्पैक्ट है बहुत बहुत ज़रूरी है।
बाकी स्पिनर्स पे ये देखना पड़ेगा कि क्योंकि ड्यू आ जाएगी तो आई डोंट नो कि इंडियन स्पिनर्स कैसे ऑपरेट करेंगे, बट फॉर मी शामी इज गोइंग टू बी द मोर कॉम्पिटेंट of all the bowlers. Exactly, and from the men in blue towards the men in black, moving on towards New Zealand, Kiwis, yes. बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि जब चेस करना होगा तो जो कंट्रोल चाहिए, पहले 15 ओवर की जो बीके ने भी बात की और मैं भी समझता हूँ कि पहले 15 ओवर अगर आप कंट्रोल कर जाते हैं, डैमेज नहीं होता आपका, तो आप ये मैच जीत सकते हैं। वहाँ पे मुझे लगता है कि जो टॉप 3 है, दे हैव टू प्ले अ मेजर रोल कि वो पहले 15 ओवर कैसे गुड मैनेज करते हैं। जो भी चेज कर रहे हैं, रन जितने भी बोर्ड पे हैं, पहले 15 ओवर अगर विकेट्स नहीं लूज करते तो दे कैन हैवीली गो फॉर अ विन, क्योंकि मिचेल इनके एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इंडियन स्पिनर के खिलाफ बहुत शानदार क्रिकेट खेली हुई है, बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेली हुई है। तो अगर पहले 3 का इम्पैक्ट अच्छा रहा तो मिचेल कैन फिनिश द गेम। बट हफीज, व्हाट डू यू थिंक टॉम लेथम शुड बी डूइंग, बिकॉज़ उनकी तरफ से वो इम्पैक्ट नहीं आया अभी तक इस टूर्नामेंट नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा पिछले कुछ मैचेस में उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं आई। तो मुझे लगता है कि ये भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की पूरी कोशिश करेंगे जब इन पे बारी आए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करना है वो पहले 3 ने करना है, और फिर जो कंटिन्यूटी या फिनिशिंग, अगर न्यूजीलैंड जीतना चाहता है चेजिंग रन, तो पहले 3 की राइट फाउंडेशन और एक लंबी इनिंग्स और साथ में मिचेल का इम्पैक्ट, अगर ये 2 चीजें उनको मिल गई, दे कैन चेज डाउन द टोटल। जी सर, बॉलिंग में क्या देखते हैं? बॉलिंग में मेरे लिए आज ट्रेंट बोल्ट और साउदी है, ये इनका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। हमें पता है कि सैंडर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ये विकेट शायद उनको थोड़ी सी मदद भी दे, लेकिन जिस तरह मैंने बात की कि नए बॉल पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम में जब से मैट हेनरी गए हैं तो सिर्फ पिछले मैच में ट्रेंट बोल्ट ने जो है वो आउट किए हैं एक मैच में। अदर दैन दैट न्यूजीलैंड नए बॉल पे अपने फास्ट बॉलर से आउट नहीं कर पा रहा। सो फॉर मी ट्रेंट बोल्ट और जो सऊदी हैं, दे हैव टू मेक एन और इम्पैक्ट। एक जो मैच है ना, वो ट्रेंट बोल्ट के न्यू बॉल के साथ रोहित शर्मा को ट्रबल क्रिएट करना है, क्योंकि उन्होंने रिसेंट पास में बहुत ट्रबल किया हुआ। तो ये भी एक मैच के अंदर एक मैच है जो बड़ा मजा आएगा इसको देखने में। सऊदी क्या वीक लिंक भी हो सकते हैं आज अगेंस्ट इंडिया? यार देखिए, सऊदी वीक लिंक मैं इसलिए नहीं कहूँगा, ऑब्वियसली इनकी पेस जो है वो काफ़ी नीचे गिरी है, लेकिन फॉर मी क्योंकि जब बॉल स्विंग हो रहा होता है तो हमने देखा है कि जो शुभमन गिल हैं और रोहित शर्मा है वो दोनों स्ट्रगल करते हैं। 6 दफा इन्होंने डिसमिस किया रोहित। और अगर नए बॉल पे सऊदी जो है वो क्लिक कर जाते हैं, ट्रेंट बोल्ट क्लिक कर जाते हैं, तो मैंने वैसे ही कहा कि अगर 10 ओवरों में इंडिया अपनी 2 विकेटें गिर गई, इंडिया की 2 विकेटें गिर जाती हैं, तो इंडिया विल प्ले द गेम अंडर प्रेशर, क्योंकि सिर्फ विराट कोहली गेम को संभाल सकते हैं। अदर देन दैट शय्यर है जो अय्यर हैं वो भी इनएक्सपीरियंस है, तो वो लंबा स्कोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी बॉलिंग अच्छी है। सेंटनर अगर 3 आउट करते हैं, तो अगर वो मिडिल में आते हैं जब भी वो बॉलिंग करते हैं, अगर वो 3 आउट करते हैं, आई एम श्योर कि न्यूजीलैंड इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या बात है, और थैंक यू मिचेल सो मच। सैंटनर इंपॉर्टेंट प्लेयर भी है। इनका ये भी कहना था कि वो 2019 वाला जो मैच है उसमें उससे हम पॉजिटिव्स लेके आज के मैच में जरूर उतरेंगे। बट ड्यू के बाद जो है वो केन विलियमसन ने भी की। ड्यू थिंक आज इंतजार हम करें ड्यू का आएगी या उससे पहले ही गेम रैप अप हो देखिए, ड्यू के आने का टाइम है कि वो पहले स्ट्रेट अवे नहीं आ रही यहाँ पे, थोड़ा सा आपको 10 से 15 ओवर वहीं पे टीमें मोस्टली 5-5, 4-4 जब आउट हो जाते हैं तो मैच खत्म हो जाता है जी। तो इसलिए मैंने बोला कि न्यूजीलैंड चेज में चाहेगा कि फाउंडेशन दे, फर्स्ट 3 की कंट्रीब्यूशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए और उनमें से एक बंदे को लंबी इनिंग्स अगर वो खेल गए, दे कैन चेज डाउन। बहुत ऊपर जाओगे, बहुत चलें, ऊपर। लंबी इनिंग्स की बात करते हैं। हमने भी बहुत लंबी इनिंग्स खेली है यू नो इस ट्रांसमिशन के साथ, और आपसे हमने हर मैच में जो है वो सवाल भी किए हैं। आज जे डॉट क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए हम लेके आए हैं बड़े मजे का, सो प्लीज टेक आउट योर थिंकिंग हैट्स, पुट देम ऑन। टुडेज क्वेश्चन ऑफ द डे इज who will be the highest run scorer in today's game? A lot of runs will be scored, rest assured आज के मैच में, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इनका नाम आता है माइंड में, खास तौर पे इंडिया अगर खेल रहा है तो रन्स कैसे नहीं बनेंगे। तो ये स्क्रीन पे फ़ोन नंबर है, प्लीज़ अपने एस्टिमेट्स, अपने गेसेस जो है हमें बताएं। लेकिन हमारे एक्सपर्ट से पूछते हैं, बीके क्विकली, कौन आपको लगता है हाईएस्ट रन स्कोरर होगा आज के मैच में? केन एंड कॉनवे। हमने ले लिया पहले ले हाँ यार, अच्छा आप बता दें यार। जी बात भाई, अगर आपने ले लिया कॉनवे तो अब कैसे नहीं, मैनेजमेंट कोई नहीं, हम इकट्ठे ले लेते। मैनेजमेंट नहीं लगी आज। जी बात। मेरे हिसाब से स्काई, जी स्काई, और अब तुमने ले लिया तो कॉनवे, नहीं तो फिर विलियमसन। विलियमसन। जी, वहाब, मिचेल, डैरल मिचेल। डैरल मिचेल, जैसा कह रहे वहां तक बारी जाएगी। ओके, इंटरेस्टिंग। हफीज, मैं भी मिचेल ही लेना चाहता हूँ जी, न्यूजीलैंड से डैरल मिचेल। और अगर इंडिया से मैं लूँ तो आई विल गो विद के राहुल। राहुल, राइट, द मैन इन्फॉर्म्ड। जी राशिद सर, शुभमन गिल। गिल और दूसरा भी लेना हाँ, है, न्यूजीलैंड। कॉनवे, कॉनवे, क्योंकि कॉनवे विल मेक वे। एक फिर मेरा भी ले लें दूसरा इंडिया का कोहली।
Nobody wants to miss out. मैं भी इंडिया से कोई लेके देता हूँ यार. मेरे ख्याल है मैं रोहित ही लिख देता हूँ आज. चले कोई नहीं कह रहा. जी रोहा, what about you? आई थिंक इंडिया आप लोगों ने सब ले रही है, मैं फिर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का बता देती हूँ क्योंकि कोई वो तो चलो उस दिन फिर भी अब नहीं तो खैर है. श्रेयस अय्यर लिख दे प्लीज. अय्यर आ गए जी. और न्यूजीलैंड से उधर से कॉनवे. कॉनवे. ओके, Today everybody is Conway's day. places रविंद्रा का their नाम bets किसी ने ले लिया, वेरी रविंद्रा इंटरेस्टिंग. रविंद्रा is सचिन special रविंद्रा तो player. ठीक है लेकिन आज कॉनवे का दिन It's फीलिंग आ kind of an रही obvious बॉलिंग आ रही है कि लास्ट choice, चैंपियन है but सीएसके. जी. तो नॉकआउट में अच्छा खेला था बहुत, 2 मैचेस. और इधर और ओनर्स लेंगे. शुभमन गिल गुजरात के चैंपियन. बिल्कुल ऐसे ही. सर कितने रन बनाएगा सर इंडिया पहले बल्लेबाजी करते? यार ये मुश्किल है, आज अंदाज़ा. थोड़ा सा ट्रिकी है. पिच ना दिखाई नहीं हमें, जी. वो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है. 290. 261. 261. ओके जी. फीस भाई इंडिया ने अगर जीतना है तो 280. 280 नहीं जीतना नहीं. हाँ. आप यार बात तो सुन रहे यार. अगर इंडिया ने 280 किया तो जीत के चांसेस इंडिया के ज्यादा. अच्छा और अगर वो 230 240 पे आउट हो जाता है तो फिर यार ये तो आप ये नहीं पूछ यार, ये safe नहीं है. टोटल क्या होगा इंडिया का? अच्छा चले, अगर मैं समझता हूँ कि अगर मैं इंडिया को समझता हूँ कि जीते तो 280. 280. अच्छा ठीक है जी. वाह भाई 270. 270. जी बाजी भाई 289. 289. आप समझ आई क्यों है? मैं 303. जी. रोहा व्हाट अबाउट यू? हैं? 303. बहुत ऊपर जाओगे. रोहा व्हाट अबाउट यू? ओके लेट 200 में. ऑलराइट 300. 300. ओके. एक मिनट, 303 की 330? 303. 303 हाँ. 3 का क्या सीन बस है? 303 मर्जी. हमारा यही है. बस 303 आया अच्छा जेब फिर में. मेरा और हमने आप बोल में इतना मार्जिन नहीं है, सो मेरा 300 प्लस कुछ आप कर दे. 323. 323. ओए Let's ओए see. बहुत आला. जी बाजी भाई मुंबई में क्या मिलेगा खाने को? टाइम तो खत्म हो गया. थोड़ा सा है. बड़ा टाइम है जी, खाने के लिए हमेशा टाइम होता है. एक इनकी पैटी है, इसका पता नहीं नाम, रगड़ा पैटी है. स्पाइसी चिकपीस को काबली चने, हाँ जी. उसमें मैश पोटैटो भी हो, इसको डीप फ्राई करते हैं पैटी को. फिर बटर गार्लिक क्रैब है, ओए ओए इसमें बटर कराची याद आ गया. फुल ऑफ बटर और गार्लिक सॉस के साथ ही आती है. लेकिन आपके लिए एंड में मैंने छोड़ी है, जी. जो आप आज नाश्ता नहीं है पर, लेकिन आप अभी भी खा सकते हैं. नली निहारी, Yeah, let's नली do बर्गर that भी today. नहीं मिल रहा. नली बर्गर. ये तो यही मिल रहा है. आज आई थिंक हम निहारी प्लान बनाते हैं आफ्टर दिस शो एंड्स. बट जेंटलमैन थैंक यू सो मच आप Thank लोगों you. के उसके ऑल द एनालिसिस दैट यू हैव गिवन अस थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप. ऑफ कोर्स अब सिर्फ 2 और हमारे मैचेस की प्री मैच एनालिसिस रह गई हैं, बट वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर इनपुट. थैंक यू. एंड यहाँ पे हम लिए चलेंगे आपको मुंबई फॉर द फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ द मेंस Cricket World Cup 2023. Enjoy the show and we will be back after the match. Game on. Game on है.